Hello, my dear students. Welcome to Talking Textbooks, Leaving No Child Behind. Today, we are going to talk more about work and also we will be knowing about the conservative and non-conservative forces. So, last lecture में हम लोगों ने वर्क के बारे में डिस्कस किया कि फिजिक्स में वर्क एक्चुअली क्या होता है. वैसे तो हमारे रियल लाइफ में सब कुछ करना ही वर्क होता है. इवन इफ आई वांट टू ईट, ईटिंग भी हमारे लिए एक काम ही है. रीडिंग अ बुक इज ऑल्सो वर्क फॉर मी, क्योंकि मेरी एनर्जी जो है कुछ ना कुछ यूज अप हो रही है, ठीक है, आइदर मेंटली और फिजिकली. बट द थिंग इज कि ये फिजिक्स में वर्क नहीं माना जाता. ठीक है, वर्क का ये हमने पूरा कंसेप्ट लास्ट लेक्चर में देख लिया है और हम लोगों ने ये भी सीखा है कि फॉर्मूला क्या होता है वर्क का, कंडीशंस, कब हमें वर्क बहुत ज़्यादा, मैक्सिमम बोल सकते हैं, नॉट ज़्यादा, बहुत ज़्यादा नहीं, बट मैक्सिमम बोल सकते हैं. सो कब हमें वर्क मैक्सिमम मिल रहा है, कब हमें वर्क जीरो मिल रहा है, कब नेगेटिव वर्क मिल रहा है, मिनिमम वर्क मिल रहा है. सो वी हैव डिस्कस ऑल द कंडीशंस इन द लास्ट लेक्चर. आज हम मेनली फोकस करेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस में. ठीक है, कि वो क्या होते हैं एंड व्हाट आर द प्रॉपर्टीज एंड व्हाट आर दीज, बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट. So you all know that we do deal with the school examination as well as the Olympiad. So अगर आप अपने स्कूल एग्जामिनेशन को क्लियर करना चाहते हैं या फिर आप अगर ओलंपियाड में बहुत अच्छे नंबर लेकर आना चाहते हैं विद अ गुड रैंक, और अगर आप सिर्फ अपनी नॉलेज इंक्रीज करना चाहते हैं तो दीज लेक्चर्स आर फॉर यू. यू शुड वॉच दीज वीडियो लेक्चर्स फॉर till the end, right? And you should definitely share these video lectures to everybody you know so that they can be benefited from these lectures and they can crack all their goals they have set for themselves. All right? If you want DBP and study material, you can access them through our Telegram channel. What you need to do is you need to write TTB009 in the search box of the Telegram app. If you do so, 9th class का channel appear हो जाएगा and then you can join the channel, access all the DPPs and study material along with the notifications of the YouTube videos, जो कि हम आपको next topic की बताते रहते हैं. So you can get that. Now see, this is a team which is going to help you a lot as we are doing very much hard work. We are putting so much effort for you all so that we can bring you the quality education and that is what you deserve, right? So ये जो क्वालिटी एजुकेशन है हम कोटा से लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए. वी आर प्रिपेयरिंग दीज थिंग्स फॉर यू ऑल सो दैट हर एक बच्चा जो कि unable to afford have quality education, they can access these education and they can definitely crack all their goals for themselves they have set for them, right? That is the most important thing, right? हमें हमारे goals को achieve करना है and इस sense में because you want to achieve your goals, that is why we are just helping you at all. ठीक है, ये वीडियो लेक्चर्स हर कोई देख सकता है. सो यू नीड टू मेक श्योर दैट यू शेयर दीज वीडियो लेक्चर्स टू एवरीबडी. So if a person is unable to get the quality education, he or she may watch these video lectures and definitely crack these examinations they have set for themselves, right? Alright, let's move on to the next thing, that is ये जो video lectures हैं ये तो free है ही है, but उसके अलावा भी हम लोगों ने कुछ packages आपके लिए prepare किए हैं. To access those packages, you need to go on our website. That is www.talkingtextbooks.in. So if you go on that website, you will be getting two type of packages over there, the full package and the test series. So full package contains all the necessary things you need to crack any examination. That is the study material, recorded live classes, homework submission feature, जहाँ पर आपको homework करना पड़ेगा और हमें submit करना होगा. उसके अलावा you are going to get the bi-weekly quizzes and the periodic test papers. So this much things included in the full package. So you can join that full package if you want to, right? And if you only want to join the test series, then you can do that too, right? If you want to buy these two packages, so you can write my code CYLive to get a 30% discount. And if you want to know more about these packages, then you can call us on the number 919549041111. And that would be all. If you want to connect with us, you can join us through these packages. It would be good. Now, this is the promise section. Promise yourself that you will be watching the whole lecture, you will be making proper notes and you will be revising on a daily basis. Revision is the key. So you need to revise more and more so that you can get the basics of these topics which are going to be repeated in your class 11. Alright, and also if you are going to fight for the NTSC and SCJS, then these topics are going to help you a lot. So you need to make sure that you revise the topics of the 9th class again and again. Make sure you excel in them, or you can say आपके लिए वो strong topics हो. ठीक है, ये आपको make sure करना है. So you need to more and more and you can revise it by that. अगर आप revise करते हैं तो ही ऐसा possible होगा. So you need to revise more and more. ठीक है,
अब तो बहुत ज़्यादा आपको रिवीजन करना चाहिए. सो टुडेज लेक्चर इज अबाउट कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. क्या क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं टुडे. देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे, एंड हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंसेस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, तो आज का जो मेन हम लोग का टॉपिक है दैट इज कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. ठीक है, नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड. Let's talk about some important points before talking about the conservative forces. So, वर्क से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं. कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में फैक्ट्स हम बोल सकते हैं जो कि आपको पता होने चाहिए. ये आपको वर्क के बारे में और भी ज़्यादा क्लैरिटी देंगे. ठीक है, आपको उसका टोटल कंसेप्ट आपको वर्क का पता चलेगा. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट. वर्क इज डिफाइंड फॉर एन इंटरवल और डिस्प्लेसमेंट. There is no term like instantaneous work similar to instantaneous velocity. तो यहाँ पर आपको बताया जाता है कि वर्क हमेशा या तो एक किसी डिस्प्लेसमेंट के लिए अवेलेबल होता है या फिर आप कैलकुलेट कर सकते हैं, जान सकते हैं, बट इट इज नॉट इंस्टेंटेनियस. आप ये नहीं कह सकते कि आप टाइम लेट्स से कि भाई जब टाइम 2 सेकेंड्स हो रहा था या फिर एग्जैक्ट 3rd सेकेंड में कितना काम हुआ, ये हम लोग नहीं बता सकते. सो वर्क जो है वो आपको हमेशा एक इंटरवल के लिए ही बताना पड़ेगा. लेट्स से इट इज नॉट इवन टाइम डिपेंडेंट, ये सिर्फ डिस्टेंस पे बेस्ड है. सो आप बोलेंगे वर्क किसके लिए, किसी भी डिस्प्लेसमेंट या फिर किसी भी इंटरवल के लिए. जैसे आप बोलेंगे कि भाई जब पोजीशन 2 थी अब पोजीशन 5 है, सो 2 से लेके 5 तक का जो डिस्प्लेसमेंट है इसमें कितना वर्क हुआ, that is you going to calculate from the formula of the work. Basically आपको ये चीज ध्यान रखनी है that it depends on the displacement और इंटरवल, डिस्टेंस इंटरवल. ठीक है, इन पे डिपेंड करता है. उसके अलावा ये फिर फोर्स पे डिपेंड करता है, बट इट इज नॉट टाइम डिपेंडेंट एंड इट इज जस्ट डिफाइंड फॉर एन इंटरवल. ऐसा नहीं है कि भाई एग्जैक्ट जो है यू कैन नॉट कैलकुलेट कि भाई एग्जैक्ट जैसे 2 पोजीशन से 5 पोजीशन तक पहुंचा. ठीक है, x इक्वल्स टू 2 मीटर से लेके x इक्वल्स टू 5 मीटर तक बॉडी को धक्का मार के हम लोग लेकर गए. ठीक है, सो वी डिड सम वर्क ऑन दैट ऑब्जेक्ट. हमने उसे धक्का मारकर 2 पोजीशन से 5 पोजीशन तक लेकर आए उसको. तो हम ये कैलकुलेट नहीं कर सकते कि एट दी 4th वन जब वो x इक्वल्स टू 4th पोजीशन पे था तब उसका कितना वर्क था. ये हम लोग नहीं डिस्कस कर सकते. हम ये बोलने वाले हैं कि भाई 2 से लेके 4 तक के में कितना काम किया गया या फिर 4 से लेके 5 तक के में कितना काम किया गया. सो यू नीड एन इंटरवल ऑफ यू कैन से डिस्टेंस या फिर यू कैन से डिस्प्लेसमेंट कि भाई एक पोजीशन से लेके दूसरे पोजीशन तक जाने में जितना काम किया गया दैट यू कैन कैलकुलेट. सो वर्क जो होता है हमेशा जब भी आप लोग पढ़ेंगे, जब भी आप लोग सुनेंगे, लिखेंगे, क्वेश्चन में गिवन होगा, हमेशा इट शुड बी फॉर एन इंटरवल. यू आर नॉट गोइंग टू गेट दी वर्क एज इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी. ठीक है, आप इंस्टेंटेनियस क्वांटिटी नहीं बता सकते. जैसे जो स्पीडोमीटर होता है, आप लोगों के व्हीकल्स में आपने स्पीडोमीटर देखा होगा, वो आपको एग्जैक्ट स्पीड बताता है, वो आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड बताता है कि भाई इस टाइम पे, इस मोमेंट पे व्हाट इज योर स्पीड. ठीक है, वो आपको बताता है. बट दिस डज नॉट हैपन विद दी वर्क. वर्क कभी भी आपको इंस्टेंटेनियस नहीं मिलेगा. आपको वर्क हमेशा एक इंटरवल के लिए मिलेगा कि भाई यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना वर्क हुआ. ठीक है, दैट इज द मेन थिंग यू नीड टू नो अबाउट दी वर्क. नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पता होना चाहिए, फॉर अ पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट वर्क डन बाय अ फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइप ऑफ मोशन, वेदर इट मूव्स विद कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन. अगर हम किसी पर्टिकुलर डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगेन 2 मीटर से लेके 5 मीटर तक की बॉडी हम लोग को डिस्टेंस ट्रेवल करना है एंड वी आर गोइंग टू से दैट कि हमने एक बॉडी पे फोर्स लगाया, 2 पोजीशन से उसे 5 पोजीशन तक लेकर आए. सो 2 से लेकर 5 तक पहुंचने में वो किस वेलोसिटी से गया, ठीक है, उसका क्या एक्सेलरेशन था. ठीक है, तो यहाँ पर जो आप बोला गया है वो उसके टाइप ऑफ मोशन से डिपेंड नहीं करता. किस तरीके का मोशन कर रहा था वो, ये डिपेंड नहीं करता. इज इट सर्कुलर, ठीक है, या फिर यू कैन से कोई भी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हो, रिटार्डेशन से मूव कर रहा हो, राइट. तो इन सब चीजों पे जो वर्क है वो इंडिपेंडेंट होता है कि भाई किस तरीके का मोशन वहां हो रहा है. यू जस्ट कैलकुलेट दी वर्क डन बाय जस्ट नोइंग द फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट. ठीक है, सो यहाँ पर ये चीज भी मैटर नहीं करती है. थर्ड थिंग आप देखिए,
For a particular displacement, work is independent of time. Work will be same for same displacement whether the time taken is small or large. Again, example लेते हैं कि भाई 2 मीटर से 5 मीटर तक बॉडी को लेकर गए. अब एक पर्सन था जो कि वीक पर्सन है. अगर एक वीक पर्सन क्या कर रहा है, 2 मीटर से 5 मीटर तक एक बॉडी को धक्का मार के लेके जाने तक उसे कितना टाइम लग गया, 5 आवर्स. इमेजिन कर लो कि भाई उसको 5 आवर्स लग गया. ठीक है, सिर्फ इमेजिन करो, ये एक बहुत ही इम्पॉसिबल सी सिचुएशन है. सो यू कैन इमेजिन, अब कोई एक स्ट्रॉन्ग पर्सन आया जिसने 2 मीटर से 5 मीटर तक बॉडी को धक्का मार के लेके गया, बट ओनली इन 1 आवर. ठीक है, सो आपने जो काम किया, इन दोनों पर्सन ने, एक वीक पर्सन और स्ट्रॉन्ग पर्सन ने जो काम किया, बोथ आर इक्वल. आप एक ही बॉडी को जहां जितना आप डिस्टेंस तक लेके जा रहे हो, उस डिस्टेंस को कवर करने में, उस बॉडी को धक्का मार के वहां तक पहुंचाने में कितना ही टाइम ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. द वर्क वुड डन वुड बी द सेम. वीक पर्सन ने भी उतना ही काम किया जितना एक स्ट्रॉन्ग पर्सन ने किया, कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसने कितना टाइम लगाया. ठीक है, सो वर्क इज इंडिपेंडेंट ऑफ द टाइम. ठीक है, तो ऐसा हो सकता है कि भाई जो काम लॉन्गर टाइम के लिए हो रहा हो वो भी सेम है, और वही काम अगर शॉर्ट टाइम में भी कंप्लीट हो जाए, सो वर्क डन वुड बी द सेम. तो वर्क डन क्या करता है, टाइम पे डिपेंड नहीं करता है. ठीक है, नेक्स्ट देखिए, व्हेन सेवरल फोर्सेस एक्ट, work done by a force for a particular displacement is independent of the other forces. जब एक बॉडी पे एक से ज्यादा फोर्सेस लग रहे हैं तो हम लोग हर एक का अलग अलग वर्क डन निकाल सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स से एक बॉडी के ऊपर 2 फोर्सेस वर्क कर रहे हैं, F1 एंड F2. ठीक है, तो हम F1 जितना वर्क कर रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, F2 जितना वर्क कर रहा है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, एंड वी कैन डेफिनेटली कैलकुलेट द बोथ विच आर टोटली सेपरेट टू दी ईच अदर. कैसे अलग अलग हैं दोनों एक दूसरे के, क्योंकि हम लोग सिर्फ एक ही फोर्स की बात करते हैं, वर्क डन बाय दिस फोर्स. तो उस फोर्स की वजह से बॉडी जितने डिस्प्लेसमेंट तक गई, वी आर गोइंग टू कैलकुलेट दैट. सो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सेकेंड फोर्स एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी. राइट, सो यहाँ पे अगर अलग अलग फोर्सेस लग रहे हैं तो वो दोनों फोर्सेस जो काम कर रहे हैं, जो वर्क डन कर रहे हैं, दोज वर्क डन आर टोटली इंडिपेंडेंट ऑफ द अदर फोर्सेस. ऑलराइट, दैट इज ऑल्सो द वन ऑफ द इंपॉर्टेंट थिंग्स यू नीड टू नो. Now see, a force is independent from reference frame. Its displacement depends on frame, so work done by a force is frame dependent. Therefore, work done by a force can be different in different reference frame. So basically, reference frame का मतलब होता है जहां से आप measurement ले रहे हो. मतलब let's say you are taking a reference frame as an XYZ axis, जो हमारी normal mutual perpendicular axis होती है. अब अगर x इक्वल्स टू 2 से लेकर x इक्वल्स टू 5 तक आप बॉडी को मूव करवाते हैं तो वो आप उस फ्रेम के रेफरेंस में डिस्प्लेसमेंट करवा रहे हैं, बिकॉज दिस डिस्प्लेसमेंट डिपेंड्स ऑन दी फ्रेम. ठीक है, दैट इज व्हाई यू आर गोइंग टू से दैट जो वर्क है वो क्या हो रहा है, डिपेंड करता है किस पे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे. राइट, चलिए एक लास्ट जो है हमारा नेक्स्ट, वो इफेक्ट ऑफ वर्क इज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑफ द सिस्टम. वर्क का क्या इफेक्ट होता है, क्या रिजल्ट मिलता है, वो ये मिलता है बॉडी मूव करने लगती है, बिकॉज यू आर टेकिंग बॉडी फ्रॉम वन पॉइंट टू द अनदर. मूवमेंट इज नेसेसरी ओवर देयर. जब तक बॉडी का मूवमेंट नहीं होगा तब तक हम मानेंगे ही नहीं कि वर्क डन हुआ है. राइट, तो वहां पे मूवमेंट बॉडी का चाहिए ही चाहिए. अब क्योंकि बॉडी एक जगह से दूसरी जगह जाएगी तो इसका मतलब वो किसी ना किसी वेलोसिटी से मूव कर रही होगी, एंड दैट मीन्स वहां पर काइनेटिक एनर्जी उसके पास होगी. सो एज एन इफेक्ट ऑफ वर्क क्या हो रहा है, बॉडी इज गेनिंग द काइनेटिक एनर्जी और बॉडी इज हैविंग द काइनेटिक एनर्जी. ठीक है, सो ये उसका एक इफेक्ट है, उसका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी वहां पर होता है. ऑलराइट, 7 देखिए, वर्क इज डन बाय द सोर्स और एजेंट दैट अप्लाइज द फोर्स. किसके द्वारा वर्क किया जाता है, वर्क किया जाता है वो उस पर्सन या फिर उस बॉडी से जो कि फोर्स अप्लाई कर रहा है. ठीक है, सो यहाँ पे लेट मी टेल यू दैट लेट्स से आई पुश द बॉक्स विद अ फोर्स और बॉक्स स्टार्टेड मूविंग. ठीक है, सो द वर्क डन वुड बी बाय मी. मैंने किया है वर्क क्योंकि मैंने फोर्स अप्लाई किया है. राइट, सो दैट इज द थिंग कि ये जो वर्क डन है वो कौन काम करता है, ये जो वर्क है वो कौन करता है, जो कि फोर्स लगा रहा होता है वो पर्सन, वो एजेंट या फिर वो बॉडी काम करती है. ठीक है, सो दीज आर द पॉइंट्स.
नाउ नोट दीज 7 पॉइंट्स टुगेदर। ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, इन सभी को आप लोग फटाफट से नोट कर लीजिए। चलिए अब हम देखते हैं कंजर्वेटिव फोर्सेस, जो कि क्या है। लेट्स सी दैट। देखिए, कंजर्वेटिव फोर्सेस ऐसे फोर्सेस जो अगर कोई वर्क करें तो वो जो वर्क है वो पाथ डिपेंडेंट नहीं हो। जैसे किसी भी रास्ते से हम बॉडी को लेकर जाएं, किसी भी रास्ते से हम बॉडी को लेकर जाएं, वर्क डन में कोई फर्क नहीं आना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा होता है, ऐसा अगर हम लोग देखते हैं कि भाई वो ऐसा डिपेंड करता है, पार्ट डिपेंडेंट है, इनडिपेंडेंट है, इसके केस पे हम बोलते हैं कि भाई ये फोर्स कंजर्वेटिव है, ये फोर्स नॉन कंजर्वेटिव है। डिपेंड ऑन व्हाट? डिपेंडिंग कि भाई जो भी वर्क डन हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट फोर्स, वो पार्ट डिपेंडेंट है या नहीं है। ठीक है, उसके बेसिस पे हम किसी भी फोर्स को कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव घोषित कर देते हैं। ऑलराइट, सो देखिए, अ फोर्स इज कंजर्वेटिव if the work done by the force in displacing a body from one point to another is independent of the path followed by the particle and depends only on the end points. So let me tell it with you an example. So देखिए यहाँ पर लेट्स से यहाँ पर एक बॉडी रखी हुई है, ठीक है, और ये बॉडी एक लेट्स से इट इज कैप्ड ऑन अ टेबल। मैं आपको टेबल ऊपर से बता रही हूँ, हम टॉप व्यू देख रहे हैं टेबल का। ठीक है, सो दिस इज द रेक्टेंगुलर पार्ट, टेबल का रेक्टेंगुलर पार्ट है, हम ऊपर से देख रहे हैं। सो बॉडी इज कैप्ड हियर, राइट हियर। ठीक है, अब ये जो बॉडी है यहाँ पर, वो कैसे जा सकती है? लेट्स से इस बॉडी को धक्का मार के हम लोग यहाँ से लेकर यहाँ तक ले आए, फिर इस बॉडी को धक्का मार के हम यहाँ तक ले आए। ठीक है, तो यहां से लेकर जाने में, यहां तक लेकर जाने में इस वर्क डन यहां पर जो हुआ बाय अ फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो बॉडी को धक्का मार के हम लेके जाएंगे। ठीक है, सो वी डिड अ वर्क ऑन इट, हमने काम किया, हम इस बॉडी को यहां से लेकर यहां लेके गए, फिर यहां तक, ये इसका फाइनल पोजीशन है। अब जो फोर्स जो मैंने लगाया उसका वैल्यू कितना भी आए, अगर वो डिपेंड करता है इसके पाथ पे कि भाई यहां से लेकर यहां तक जब गए एंड देन कम हियर, तो ये क्या हुआ, कोई ना कोई वैल्यू होगा, यहाँ पे वर्क डन होगा। और ये जो वर्क डन है अगर ये चेंज हो जाए, मैं पाथ चेंज कर दूं तो, जैसे सेकेंड पाथ व्हाट आई कैन चूज, लेट इट बी फर्स्ट पाथ, ऐसे गए एंड देन वी मूव लाइक दिस। सेकेंड पाथ ये है कि इस पोजीशन से डायरेक्टली धक्का मार के हम उसे इस पोजीशन तक ले आए। ठीक है, लेट इट बी इनिशियल पोजीशन एंड दिस इज द फाइनल पोजीशन। सो सेकेंड पाथ ये हो सकता है कि यहां से लेकर हम यहां तक लेकर आ जाए, धक्का मारते हुए लेकर आ जाए, टेढ़े सीधे जाने की बजाय। राइट, सो यहाँ पे दो पाथ है। लेट्स से फोर्स को जब जितना हमने फोर्स लगाया वही फोर्स अगर हम बॉडी को फर्स्ट पाथ से लेके गए एंड वी कैलकुलेटेड द वर्क डन, यही फिर इसी फोर्स से हम लोग क्या करने, सेकेंड पाथ से लेके गए और हम फाइनल तक पहुंच गए। ठीक है, अगर यहाँ पे जो वर्क डन है, वर्क डन की वैल्यूज फॉर बोथ द पाथ्स आर डिफरेंट। अगर ऐसा होता है कि भाई वर्क डन बाय फोर्स जब फर्स्ट पाथ पे मूव किया, वर्क डन बाय फोर्स जब सेकेंड पाथ पे मूव किया, इफ दैट हैपेंस, अगर अलग अलग वैल्यूज आती हैं, सो दिस फोर्स इज नॉन कंजर्वेटिव, बिकॉज कंजर्वेटिव में तो वो इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ है
कोई भी पाथ तुम ले जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए, वर्क डन का वैल्यू चेंज नहीं होना चाहिए, वर्क डन शुड बी द सेम, कोई भी पाथ तुम फॉलो करो, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट द कंजर्वेटिव फोर्सेस। सो ऐसे फोर्सेस जो क्या करते हैं, जब वर्क डन कर रहे हैं तो वो वर्क अगर अलग अलग वैल्यूज देता है, जब पाथ बदलते जाते हैं, भले ही इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट सेम हो, पाथ अगर चेंज हो जाता है एंड बिकॉज ऑफ दैट वर्क डन का वैल्यू भी चेंज हो जाता है बाय द सेम फोर्स, देन यू आर गोइंग टू से दैट द फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव। एंड इफ दैट नॉट हैपेंस, अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सेम फोर्स आप अलग अलग पाथ से बॉडी को लेके जा रहे हो, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक पहुंचा रहे हो एंड द वर्क डन थ्रू ऑल द पाथ्स आर सेम, तो हम उसको क्या बोल देते हैं, कंजर्वेटिव फोर्स बोल देते थे। ऐसे ही अगर ये पाथ यहां पे, इफ वर्क डन फॉर पाथ्स, वर्क डन फॉर डिफरेंट पाथ, अलग अलग पाथ के लिए is different, then what we say, then we say this force is यहां पे अलग अलग वैल्यूज मिलती हैं अगर आपको, तो हम बोल देंगे that this force is what, is non conservative। ठीक है, अगर अलग अलग हमें वैल्यूज मिल रही हैं वर्क डन की अलग अलग पाथ के लिए, सो वी आर गोइंग टू से दैट दिस फोर्स इज द नॉन कंजर्वेटिव एंड वी गॉट द सेम वैल्यू, भले ही हम किसी भी पाथ से बॉडी को लेकर जाएं, बस हमें इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक पहुंचना है, ठीक है। तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, इन दैट केस दैट फोर्स इज नोन एज द कंजर्वेटिव फोर्स। अब कंजर्वेटिव फोर्सेस के एग्जांपल्स, भाई कौन कौन से फोर्सेस कंजर्वेटिव होते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव होता है, मतलब आप बॉडी को कैसे भी लेकर जाओ, द वर्क डन बाय दिस फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, इसको हम प्रूव करेंगे, ठीक है। फिर देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आप किसी भी चार्ज को कहीं से भी कहीं पर भी लेकर चले जाओ, किसी भी पाथ से लेकर चले जाओ, बट इट हैज टू बी द इनिशियल एंड द सेम फाइनल पॉइंट। अगर ऐसा होता है तो आप किसी भी पाथ से लेकर जाओ फाइनल पॉइंट तक, द वर्क डन वुड बी द सेम फॉर एवरी पाथ। इसी तरीके से इलास्टिक फोर्स ऑफ अ स्प्रिंग, ये क्या है, कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, ठीक है। आप इनका डेफिनेशन फटाफट से नोट कर लीजिए। Alright, now let's move on to the next things we need to learn about the conservative forces. So देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, let's suppose एक पार्टिकल है, वो A पोजीशन पे है, ठीक है। A पोजीशन पे पार्टिकल है और हम उसे धक्का मार के A1 पाथ से लेके जा रहे हैं, B तक पहुंचाने के लिए लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या वर्क करेंगे, लेट इट बी, हम लोग ने कोई लेट्स से W वर्क किया, क्या किया हम लोगों ने, पहले तो ध्यान से देखिए, इनिशियल पॉइंट से, इनिशियल पॉइंट उसका क्या है, ए है, सो ए पोजीशन से हम बॉडी को फर्स्ट पाथ से धक्का मारते मारते लेके गए बी तक, ठीक है। फिर हमने क्या किया, उसी बॉडी को ए पाथ से, ए इनिशियल पॉइंट से सेकेंड पाथ तक धक्का मार के लेते गए, बी पॉइंट तक पहुंचा दिया, ठीक है। सो व्हाट वी डिड हियर, हमने बॉडी को मूव करवाया थ्रू पाथ 1 एंड थ्रू पाथ 2। So if the force is conservative, जो force हम apply करें, if that is conservative, so what will be happening here? अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, conservative force अगर लगता है, so we can write mathematically that work done in moving from A to B, ठीक है, work done in moving from A to B, कौन से पाथ से, along path 1 is going to be equal to work done on path
बी ए टू बी, ठीक है, ए टू बी रहेगा अलोंग पाथ 2, ठीक है, ये दोनों आपस में इक्वल रहेंगे, ठीक है। और ये किस कंडीशन में इक्वल रहने वाले हैं? व्हेन द फोर्स जिसकी वजह से ये वर्क किया जा रहा है, that force is conservative, only then we can write this equation mathematically, that work done in moving from A to B along path 1 is equal to the work done in moving from A to B along path 2, ठीक है। इन दोनों ही पाथ से अगर बॉडी को लेकर जाया जाता है by the application of a force and some work is done on it, then we can say that the work done would be the same, ठीक है, for both the paths, so we can write this, ठीक है। अब हम एक और कंडीशन जो है ले लेते हैं, आप पहले इसे नोट कर लीजिए। ऑलराइट, चलिए अब हम आगे चलते हैं एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो देखिए, अब की बार हम क्या कर रहे हैं, अब की बार हम बॉडी को लेके जा रहे हैं, ए टू बी लेकर जा रहे हैं। पहले तो हम फर्स्ट वाले पाथ से बॉडी को ए टू बी लेकर गए बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ कंजर्वेटिव फोर्स, एंड बी से हम टू पाथ से वापस लेकर आए उसको ए तक। सो वी मेड अ सर्कल, इनिशियल से फाइनल, नहीं, इनिशियल से ए टू बी एंड देन अगेन टेक इट टू द ए। तो हमने इनिशियल पॉइंट पर ही फाइनल पॉइंट बना दिया है, ठीक है। सो इस पूरी साइकिल के दौरान वर्क डन कितना हुआ, लेट्स फाइंड आउट बाय द कंजर्वेटिव फोर्स। लेट्स फाइंड आउट। सो बेसिकली नाउ सपोज द पार्टिकल मूव्स इन अ राउंड ट्रिप फ्रॉम पॉइंट ए टू बी along path 1 and then back to point A along path 2, ठीक है। हमने ये काम अभी किया है, हमने क्या किया, बॉडी को A से लेके जा रहे हैं B तक थ्रू पाथ 1 एंड B से अगेन वी आर कमिंग बैक टू A थ्रू पाथ 2, ठीक है। सो इस दौरान अगर हम देखें कि यहाँ पे कितना वर्क डन हुआ और कैसा वर्क डन हुआ, तो देखिए फॉर अ कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स है, ठीक है। सो व्हाट वी कैन डू, वर्क डन ऑन द पार्टिकल अलोंग द पाथ 2 फ्रॉम ए टू बी। अगर ए टू बी, ठीक है, अगर बॉडी को लेकर जाते हैं और पाथ 2 से लेके जाते हैं, तो हम लोग कैसे लिखते हैं, उसके लिए देखिए, वर्क डन इक्वल्स टू माइनस वर्क डन ऑन द पाथ अलोंग पार्ट 2 फ्रॉम बी टू ए। देखिए हम लोगों ने जब पहली बार लिखा था तो क्या लिखा था, ए टू बी हम लेके जा रहे हैं बॉडी को थ्रू पाथ 2, यही लेकर जा रहे थे ना, W टू ए बी। बट अब की बार हम B टू A मूव कर रहे हैं, तो दैट शुड बी द नेगेटिव ऑफ A टू B। सो वी कैन से हियर, यहां पर आप देखिए, वर्क डन ऑन द पार्टिकल along the part 2 from A to B is equals to minus work done on the particle along the part 2 from B to A। अगर हम A to B लेकर जा रहे हैं तो सेम वर्क डन हो रहा है, B to A लेकर आ रहे हैं तो भी सेम वर्क डन हो रहा है, बट डायरेक्शन इज अपोजिट हियर, राइट। दैट इज वाई वी कैन से कि यहाँ पर ये दोनों आपस में एक दूसरे के क्या होंगे, अपोजिट एंड इक्वल होंगे, राइट, क्योंकि सेम पाथ है, राइट। दैट इज वाई वी कैन से दैट। अब हम देखते हैं आगे, जो हमारे आगे का डेरिवेशन है वो देखिए, WAB वर्क डन इन मूविंग फ्रॉम A टू B along path 2 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ WB टू A along path 2। आप जो लेकर गए थे, A से B तक लेकर गए थे पार्ट 2 में, वो किसके इक्वल होगा, माइनस ऑफ B टू A। वापस लेकर आ रहे हैं तो उसी का इक्वल है लेकिन नेगेटिव है, ठीक है। सो वी कैन राइट दिस, इक्वेशन 2 बन गई है हमारी। अब हम लोग फर्स्ट वाली इक्वेशन को यूज करते हुए, जो हमारी फर्स्ट वाली इक्वेशन हम लोगों ने लिखी थी, उसको यूज करते हुए वी कैन राइट WAB यानी वर्क डन फ्रॉम मूविंग A टू B along path 1 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ वर्क डन B टू A जाने का वर्क डन along path 2। ये दोनों आपस में कैसे है, इक्वल एंड ऑपोजिट। सो हम इसको जब लेकर आएंगे लेफ्ट हैंड साइड, सो वी आर गोइंग टू ऐड देम एंड वी आर गोइंग टू गेट द 0। सो अब अगर बॉडी जाती है A टू B पाथ 1 से एंड आती है वापस B टू A पाथ 2 से, सो यू आर गोइंग टू गेट वर्क डन 0।
सो इस बेसिस पे हम लोग ये कह सकते हैं कि जब कभी भी एक सर्कल बनता है, जब एक होल साइकिल बनती है और पार्टिकल क्या करता है, होल साइकिल कंप्लीट करते हुए बाय द एप्लीकेशन ऑफ अ फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, अगर पार्टिकल वापस अपनी फाइनल से और इनिशियल पोजीशन को कोइंसाइड कर देता है, इनिशियल पॉइंट ही उसका फाइनल पॉइंट बनता है, सो वी कैन से दैट द वर्क डन बाय द कंजर्वेटिव फोर्स वुड बी जीरो। ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, वर्क डन फॉर अ क्लोज्ड पाथ वुड बी जीरो, दिस इज इंपॉर्टेंट। तो आप इसको एक डब्बे में बंद कर लीजिएगा, ठीक है। Hence, a force is conservative if the work done by the force in moving a particle around any closed path is zero. You need to make sure that अगर conservative force है तो वो closed path पे अगर work done करता है तो that would be zero, ठीक है। ये चीज आपको conservative property, conservative force का एक property आप मान सकते हैं, ठीक है। Note this down, इसको फटाफट से नोट कर लें। ऑलराइट, अब चलिए हम आगे देखते हैं और प्रूव करते हैं दैट ग्रेविटेशनल फोर्स एक कंजर्वेटिव फोर्स है, और कैसे है, लेट्स सी दैट। सो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स का कंजर्वेटिव नेचर होता है, दैट मीन्स अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स कोई काम करता है, कोई वर्क करता है किसी बॉडी पे उसको मूव करवाने के लिए, सो दैट वर्क इज पाथ इंडिपेंडेंट, दैट शुड बी हैपन, राइट। अगर हम बॉडी को लेट्स से यहाँ पर मैं आपको एज एन एग्जांपल लेती हूँ, तो दिस इज द पोजीशन ए, ठीक है। ए पोजीशन पे बॉडी रखी हुई है, बॉडी को हम वर्टिकली उठा के लेकर जा रहे हैं, मींस वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। सो यहाँ पे जो बॉडी है उसको ऊपर लेकर जा रहे हैं, ऊपर लेकर जा रहे हैं, वी आर डूइंग वर्क अगेंस्ट ग्रेविटेशनल फोर्स एंड वी आर गेटिंग अप टू द हाइट एच। हम उसको बॉडी को एच हाइट तक लेके गए एट पोजीशन बी, ठीक है। यहाँ पर हम कितना काम करेंगे, लेट्स सी दैट। Suppose a body of mass m is raised to a height h vertically upwards from position A to B. So work done against gravity would be how much? mg into h. mg is the weight, the force applied by the gravity, और height कितना है ab, यानी कि distance covered by the body, the displacement of the body, right? So it is ab, and the ab distance is h height, so we can say it would be mgh, ठीक है। ये हमने याद रख लिया, ये हमने पता कर लिया कि अगर भाई बॉडी को हम सीधे नीचे रखी हुई बॉडी उसको उठा के अगर हम ऊपर लेकर आ जाते हैं, सो वी डिड सम वर्क ओवर देयर अगेंस्ट ग्रेविटी एंड दैट इज द वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट कवर्ड बाय द बॉडी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट लेकर आते हैं और देखिए क्या करते हैं। अब की बार हम इसको, क्योंकि हमें चेकआउट करना है कि भाई ये पाथ इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है, ठीक है, ये चेकआउट करना है। एक पाथ तो हमने डिसाइड कर लिया डायरेक्टली ऊपर लेके जाने का, दूसरा पाथ हम लोग डिसाइड करते हैं कि भाई इस बॉडी को पहले हम सी तक लेकर जाएंगे, देन उसे हॉरिजॉन्टली डी तक लेकर जाएंगे, देन उसे ई तक लेकर जाएंगे, ठीक है, ऊपर सीधे वर्टिकल लेकर जाएंगे, एंड देन ई से उसे बी पोजीशन तक लेकर जाएंगे। सो पाथ, अब ये चेंज्ड पाथ है जो कि हमने अभी फॉलो किया है। सो व्हाट पाथ वी फॉलोड, ए सी डी ई बी। अब की बार हम ये पाथ फॉलो करते हैं, ठीक है, देखते हैं क्या होता है। नाउ सपोज द बॉडी इज टेकन फ्रॉम पोजीशन ए टू बी अलोंग द पाथ जिसका नाम है ए सी डी ई बी, ऑलराइट। चलिए, ड्यूरिंग द हॉरिजॉन्टल पाथ सी डी एंड ई बी, देखिए सी डी और ई बी ये जो दो पाथ हैं, इन दौरान जब हम इस पाथ पे बॉडी को लेकर जाएंगे उस वक्त जो ग्रेविटी का फोर्स है वो कैसा होगा, लेट मी टेल यू विद दैट। देखो, जब हम सी डी की बात करें और ई बी की बात करें तो मोशन कहां हो रहा है, इधर,
ठीक है, सो द डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, राइट साइड में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, एंड द फोर्स इज डाउनवर्ड, ग्रेविटी का फोर्स वो तो डाउनवर्ड है ना, सो डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों की डायरेक्शन कैसी है, परपेंडिकुलर है, राइट, तो यहाँ पे वर्क डन कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। सिमिलरली बी ई बी, राइट, ई बी पाथ पर भी वर्क डन कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। बाय दी यू कैन से बाय दी हेल्प ऑफ द फॉर्मूला ऑफ द वर्क। ठीक है, अब देखिए वर्क इज डन ओनली अलोंग वर्टिकल पाथ ए सी एंड डी ई। सो बेसिकली वर्क डन जो हुआ वो सिर्फ ए सी और डी ई पर ही हुआ, इन पाथ पर ही हुआ वर्क डन एक्चुअली। सो टोटल वर्क डन अगर हम देखें तो क्या होना चाहिए, ठीक है, ये है टोटल वर्क डन। ये जो वर्क डन होगा, वर्क डन अलोंग ए सी प्लस वर्क डन अलोंग सी डी प्लस वर्क डन अलोंग डी ई प्लस वर्क डन अलोंग ई बी। ठीक है, ए से सी तक लेकर गए तो वर्क डन, फिर सी से डी तक लेकर गए तो कितना वर्क किया, डी से ई लेकर गए तो कितना वर्क किया, और ई से बी लेकर गए तो कितना वर्क किया, इन सभी का सम हमने कर दिया। वी आर गोइंग टू गेट द टोटल वर्क डन। तो अब देखिए ए टू सी लेकर जाएंगे, ठीक है, सो यहाँ पर वर्क डन कितना होना है, वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड दैट इज ए सी। ठीक है, अब सी डी में कितना वर्क डन किया, आई टोल्ड यू सी डी में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो राइट डायरेक्शन में है, फोर्स जो mg लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, राइट, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और फोर्स 90 डिग्री पर बना रहे हैं, सो cos 90 डिग्री होना चाहिए। cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होगा, 0। सो सी डी पाथ के दौरान द वर्क डन इज 0। सो यहाँ पे सी डी का जो है वो 0 हो गया है। अब हम देखते हैं DE, तो यहाँ पे वेट ऑफ द बॉडी जब हम D से E लेकर जाएंगे, उठाकर लेकर जाएंगे, सो mg वेट ऑफ द बॉडी मल्टीप्लाइड बाय द डिस्टेंस कवर्ड दैट इज DE। अगेन EB की बात करें तो ये भी टर्म कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा, सो वी गेट द 0 वर्क डन। ऑलराइट, यहाँ पर हम टोटल कैलकुलेट करते हैं, mg AC mg DE, तो mg कॉमन लेकर AC प्लस DE लिख देते हैं। ये जो DE है और AC है, AC DE, ये दोनों टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, AB ही तो हो गया, तो दैट इज द टोटल हाइट h। सो वी आर गोइंग टू गेट अगेन mgh। सो दिस इज द टोटल वर्क डन। तो हम दो अलग अलग पाथ से लेकर गए बॉडी को, फिर भी हमें एक ही फोर्स मिला। इसका मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव नेचर का है, किसी भी पाथ से आप लेकर जाओ वर्क डन की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, सो हम अपने कंक्लूजन तक पहुंच चुके हैं। Thus the work done in moving a body against gravity is independent of the path taken and depends only on the initial and final positions of the body. Hence gravitational force is a conservative force. We have totally proved it. ठीक है, फटाफट से इसे नोट कर लेंगे। All right, now let's talk about the non-conservative forces, उनका definition और उनका मतलब। So देखिए, यहाँ पर हमने तो ये चीज समझ ही लिया है कि अगर कोई भी फोर्स वर्क डन कर रहा है और वो वर्क डन पाथ पे डिपेंड करता है, तो इसका मतलब वो फोर्स क्या हुआ, नॉन कंजर्वेटिव। तो मतलब यहाँ पे अगर आप किसी बॉडी को एक पाथ से लेकर जा रहे हो, फिर आप उसी बॉडी को उस पॉइंट तक, उसी फाइनल पॉइंट तक दूसरे पाथ से लेकर जा रहे हो, वर्क डन डिफरेंट आ रहा है, सो इट इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। एंड डू यू नो दैट फ्रिक्शनल फोर्स इज अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेज। सो जो हमने एग्जाम्पल किया था कि भाई टेबल के ऊपर हम लोग ऑब्जेक्ट्स को एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन तक लेकर जा रहे थे, इन दैट केस दोनों पाथ का जो वर्क डन होगा वो डिफरेंट होगा। ठीक है, तो सी
if the amount of work done in moving an object against a force from one point to another depends on the path along which the body moves, then such force is called non-conservative forces. अब देखो, हमने कंजर्वेटिव में एक प्रॉपर्टी देखी कि भाई अगर आप एक क्लोज्ड पाथ के अलोंग वर्क करते हो तो उस केस में क्या होगा, फुल साइकिल के लिए यू आर गोइंग टू गेट जीरो वर्क डन बाय अ कंजर्वेटिव फोर्स. ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी देखी. लेकिन यही प्रॉपर्टी अगर हम कंजर्वेटिव फोर्स के लिए लिखें तो क्या लिखेंगे, वर्क डन इन मूविंग एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज नॉट जीरो, यू आर गोइंग टू गेट सम एक्स्ट्रा वर्क. क्या तो नेगेटिव पॉजिटिव कुछ ना कुछ आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, नॉन जीरो वर्क आपको वहां मिलने वाला है इफ अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स इज वर्किंग आउट देयर ऑन अ क्लोज्ड पाथ. ठीक है, दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. एंड विच फोर्सेस आर द नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस, फोर्सेस ऑफ फ्रिक्शन एंड विस्कोसिटी. ये जो फोर्सेस हैं वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस होते हैं. सो आप फटाफट से इसका डेफिनेशन नोट कर लीजिए. All right, now let's look up to the differences. वैसे तो आप डिफरेंसेस खुद लिख सकते हैं, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव के केस में खुद ही आप डिफरेंसेस लिख सकते हैं, बट फिर भी मैं टेबुलर फॉर्म में आपको बता देती हूँ सो दैट आपको इतना प्रॉब्लम नहीं होगी. So this is in the tabular form. So देखिए, work done by a conservative force in a round trip is 0. Work done by a non-conservative force in a round trip is not 0. पहला डिफरेंस तो हमने यही बता दिया. सेकेंड डिफरेंस अब देखिए, वर्क डन डिपेंड्स ऑन इट्स इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन नॉट ऑन इट्स पाथ. और वर्क डन, यहाँ पे वर्क होना चाहिए, इज पाथ डिपेंडेंट. सो देखिए यहाँ पर वी कैन सी, लेट इट बी, देखिए यहाँ पर पहले तो हम यहाँ पे आर लगा देते हैं. ठीक है, सो वर्क डन इज पाथ डिपेंडेंट. नॉन कंजर्वेटिव और कंजर्वेटिव, अब तीसरा आप और डिफरेंस लिखना चाहते हो बिकॉज हो सकता है ये जो डिफरेंसेस हैं ये जनरली आपके स्कूल एग्जामिनेशन में आते हैं और आपको टेबुलर फॉर्म में ही बनाने चाहिए. अगर कभी भी स्कूल एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि भाई राइट 2 डिफरेंसेस और 3 डिफरेंसेस, ठीक है, आपको तो 2 पता चल गए, 3 का आपको बताना है, ठीक है, या 4 आपको डिफरेंसेस बताना है बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. व्हाट यू कैन डू, यू कैन ऐड ऑन द एग्जांपल्स. आप एग्जांपल्स और ऐड कर दीजिए. आप कंजर्वेटिव फोर्स के 1-2 एग्जाम्पल लिखिए, आप नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का एग्जाम्पल लिखिए, तो वो थर्ड डिफरेंस बन जाएगा. और अगर फिर भी आपको 4 डिफरेंस और लिखना हो तो आप डेफिनेशन लिख दीजिए. ठीक है, सो कंजर्वेटिव फोर्स की और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की डेफिनेशन लिख दीजिए. यू आर गोइंग टू गेट द 4 डिफरेंसेस बिटवीन द कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस. सो आप इस तरीके से स्कूल एग्जामिनेशन में इसको लिख सकते हैं. आपको ये बात ध्यान में रखनी है कि स्कूल्स में जो एग्जामिनेशन होते हैं उसमें कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में अगर डिफरेंसेस पूछे जाते हैं किन्हीं भी 2 चीज़ों के बीच में, हमेशा टेबुलर फॉर्म में ही लिखें. ठीक है, उसको पॉइंट्स फॉर्म में या फिर सिंपल एक पैराग्राफ फॉर्म में नहीं लिखें, उसको टेबुलर फॉर्म में लिखें, ज़्यादा अच्छे नंबर मिलते हैं. ऑलराइट, तो आप इसे फटाफट से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं और वो जो क्वेश्चन आपने अभी अभी गलती से देख लिया था उसे हम सॉल्व करते हैं. Alright, now let's do the question in front of you. तो ये क्वेश्चन आपके सामने है. यहाँ पर आपको वर्क डन का फॉर्मूला लगाना है और कैलकुलेट करना है. क्या, लेट्स सी. अ मैन लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ वेल 25 मीटर डीप. 25 मीटर डीप वेल, यानी कि यू नो द डीपनेस, द लेंथ ऑफ, यू कैन से, ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बकेट. सो यू नो द डिस्टेंस. ठीक है, if the work done by the man is 500 joule, then find the volume of the water. तो यहाँ पे आपको G का वैल्यू दिया हुआ है, आपको volume of the water कैलकुलेट करना है. How you can do it? Work done तो सिर्फ mass होता है, we can say mass of the object. ठीक है, mgh अगर हम मोस्टली लगा दे तो. But let's see, I'm going to tell you कि हम किस तरीके से कर सकते हैं.
सो लिफ्ट्स वाटर फ्रॉम अ 25 मीटर डीप। तो अगर हम 25 मीटर डीप वेल में से पानी निकालेंगे तो क्या होगा, बकेट की हेल्प से मान लो तुम पानी निकाल रहे हो, सो बकेट की हेल्प से अगर तुम पानी ऊपर लेकर आ रहे हो, सो बकेट कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, 25 मीटर, नीचे से ऊपर आने में 25 मीटर वो ट्रैवल करेगी। सो यहाँ पर जो हाइट है दैट इज 25 मीटर, ठीक है, जितनी हाइट पानी ने ट्रैवल की है, ठीक है। वर्क डन यहाँ पे ऑलरेडी आपको दिया हुआ है कि भाई इंसान ने वर्क डन कितना किया, 500 जूल्स। अब हमें निकालना है वॉल्यूम। वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्टेंस भी हो सकता है फॉर द स्ट्रेट पाथ। तो देखिए आपको वर्क डन पता है, वर्क डन का वैल्यू आपको पता चल चुका है, वर्क डन का फॉर्मूला आपको पता है। तो देखिए वर्क डन का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पानी क्योंकि 25 मीटर ट्रैवल करता हुआ ऊपर आया, सो डिस्टेंस कवर्ड बाय द वाटर इज डी हियर। सो यहाँ पे जो डी का वैल्यू है वही हमारा एच यानी कि 25 मीटर है। बट यहाँ पे फोर्स का क्या करें, पानी जब ऊपर आ रहा था तो कितना फोर्स उसके ऊपर काम कर रहा था, उसके ऊपर काम कर रहा था mgh, बिकॉज वी आर डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, द मैन इज डूइंग द वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। सो कितना फोर्स वो अप्लाई करेगा, वो अप्लाई करेगा मास इंटू ग्रेविटी मल्टीप्लाइड बाय द हाइट, सो इट इज गोइंग टू गिव यू mgh, ठीक है। अब आपके पास g का वैल्यू, अब आपके पास हाइट का वैल्यू, अब आपके पास w का वैल्यू है, तो आपको तो मास मिलेगा, आपको वॉल्यूम कैसे मिलेगा, वाटर का। यहां से हम दूसरा फॉर्मूला ज्वाइन करेंगे दैट इज द डेंसिटी, ठीक है। तो देखिए यहां पर हम लोग ये बात जानते हैं भाई कि जो डेंसिटी होता है वो क्या होता है, मास डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। ऑलराइट, अगर आपको मास कैलकुलेट करना है तो आप कैसे कर सकते हैं, आप कर सकते हैं डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो कर दो डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। फ्लूइड के चैप्टर में हमने ये सीखा था, राइट। अब देखिए यहां पर आप क्या कर सकते हैं, मास की जगह पे डेंसिटी इनटू वॉल्यूम लिख दीजिए। सो W वुड बी हाउ मच, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी रो इनटू G इनटू H। अब हम इजीली वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, सो इट इज W डिवाइडेड बाय रो GH, राइट। वर्क डन कितना है, 500। डेंसिटी वाटर की कितनी होती है, रिमेंबर करने बोला था ना लास्ट लेक्चर में, लास्ट चैप्टर में हम लोगों ने क्या सीखा था कि डेंसिटी होती है वाटर की 1000 kg पर मीटर क्यूब, इसको रिमेंबर करना है, ठीक है। सो यहाँ पे डेंसिटी लिख रहे हैं 1000 kg पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाइड बाय जी का वैल्यू हमें 10 दिया है और हाइट दी है 25, ठीक है। अब देखो 25 से 500 कट जाएगा 20 टाइम्स, ठीक है, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 डिवाइडेड बाय 1000 ओनली, सो दैट वुड बी 0.200, नहीं 0.002, राइट, 0.002 मीटर क्यूब वुड बी द वॉल्यूम ऑफ द वाटर, जो कि 25 मीटर डीप वेल से ऊपर आया है, ठीक है, वो है वॉल्यूम ऑफ द वाटर हेयर। So you can note this down. Alright. So हम लोगों ने वर्क के बारे में समझ लिया है अच्छे से, कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में समझ लिया है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में एनर्जी समझेंगे, ठीक है। सो लेट्स मीट अप इन द नेक्स्ट लेक्चर। Thank you so much for watching the video. Please like it, share it, subscribe it, and do not forget to click on the bell icon so that you will remain notified for the upcoming videos. Thank you so much.